Hello students, so today we are going to start with the second chapter, that is diversity in the living world. इस chapter में हम पढ़ेंगे about various plants and their features, leaves, flowers के बारे में हम इस chapter में discuss करने वाले हैं. So let us start without wasting any further time. यहाँ पर एक quote given है, trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. तो यहाँ पर ये जो कोट लिखी है क्या कह रही है कि जैसे पेड़ होते हैं तो पेड़ सारी जो भी सूरज की किरणें होती हैं, जो कुछ भी आंधी तूफान होता है, सब कुछ वो अपने ऊपर लेकर के आपको शेड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं. उसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं वो सारी हार्डशिप, सारी मुसीबतों को अकेले सॉल्व करके जो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको वेलफेयर यानी कि उनको एक शेल्टर, एक पीसफुल लाइफ देते हैं. ओके, so with that quote we are going to start with the chapter. It is a very beautiful chapter and you need to pay attention here, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. Now यहाँ पर एक story से it is being shown here what is happening. It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha, to facilitate an exciting nature walk. So they are basically going on a nature walk. Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. So Dr. Raghu हैं जो कि एक scientist हैं, and then we have Maniram Chacha who can mimic birds calls, यानी कि चिड़ियों को अपनी आवाज़ में बुला सकते हैं. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. The teacher advises the students to carry a notebook. As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advises the students to notice all the variety of smells in the park and emphasizes respecting all the living creatures and observing them without disturbing. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉक्टर रघु एंड Maniram Chacha they have been invited to the school for a nature visit, for a nature walk, और वहाँ पर जा कर के वो वहाँ की जो और स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की और फ्लावर्स की उन्हें देख रहे हैं. एंड देर इन्फॉर्मिंग द चिल्ड्रन की डोंट टच एंड स्पॉइल देम. The students can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informs them that each bird has a unique chirp. तो डॉक्टर रघु क्या बता रहे हैं कि हर एक जो अलग अलग वैरायटी है बर्ड की, उनकी एक अलग तरीके की चर्प है, यानी कि वो अलग तरीके से बोलती हैं. This is an example of diversity in nature. Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds. Maniram Chacha mimics different bird calls. The students enthusiastically start copying him. अगर आपने स्पैरो देखी है तो स्पैरो की जो चर्पिंग रहती है वो अलग होती है. आपने अगर क्रो की चर्पिंग देखी है तो वो अलग होती है. तो हर एक एक पक्षी की चर्पिंग यानी कि उसकी जो बोलने का होता है, जो उसकी आवाज़ होती है वो अलग होती है. Now, diversity in plants and animals around us. So this is an activity which is being shown here. So what is written? Let us just straight away come to the table. अब इस टेबल में क्या गिवन है? इस टेबल में तरह तरह के प्लांट्स, उनकी स्टेम, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं, और कोई अगर स्पेशल फीचर है तो वो कैसा होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. सो लेट्स गो वन बाय वन. कॉमन ग्रास, जो आपने घास देखी है, उसकी स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट और थिन होती है. पत्तियाँ कैसी होती हैं? अ सिंगल लीव ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम. और लीव्स ग्रीन लीव्स होती हैं. ठीक है. तुलसी, आप सबने आई गेस तुलसी देखी होगी. तुलसी की स्टेम बहुत ही हार्ड होती है और थिन होती है, पतली सी होती है. अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. पेयर ऑफ लीव्स आर अरेंज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. कैन यू सी? इस तरफ है, फिर दूसरी तरफ है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ. ओके, सो दिस इज़ द
अरेंजमेंट एंड पिंकिश पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं. देन वी हैव हिबिस्कस, स्टेम इज हार्ड. तो ये सारी इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन हियर. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे इंफॉर्मेशन अबाउट सम एनिमल्स इज गिवन. क्रो कहाँ पर रहता है, ट्री पे. क्या खाता है, इंसेक्ट्स. कैसे चलता है, फ्लाई करता है और वॉक करता है. ओके. एंड कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक. एंड ये कितने लेग्स होते हैं, 6. क्या खाती है, लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट. और कहाँ रहती है, सॉइल में और बड़ों में. ओके. तो यहाँ पर बेसिकली कुछ एनिमल्स, हमारे जो कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. ओके. सो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड हियर. नाउ the variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. हम कहीं पर भी रह रहे हैं, वहाँ पर कितने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कितने अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी हैं, वो क्या बताते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बताते हैं. बायो मीन्स नेचर, बायो मीन्स नेचर, और डाइवर्सिटी का मतलब आप सबको पता होगा, वैरायटी. ओके. तो बेसिकली हमें तरह तरह के जो भी पशु पक्षी हैं उनकी डाइवर्सिटी के बारे में हम वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी हमने प्लांट्स को हमने ग्रुप किया और हमने एनिमल्स को हमने ग्रुप किया था. एनिमल्स में भी हमने बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स सबको हमने एक ही टेबल में हमने रखा था एंड वी हैव हैड group them. Okay. Now तो यहाँ पर in these pages just the information about your basic plants और animals उस पर given है. Now let's come from here. अब जो plants होते हैं, if I have a plant, let's say, तो हर एक प्लांट जो है, अगर मैंने उसे सो किया है तो वो बड़ा हो कर के या तो एक थोड़ा बड़ा प्लांट बनेगा और कुछ केसेस में वो एक ट्री भी बन सकता है. बट हर एक प्लांट ट्री नहीं बनेगा. ठीक है. तो कौन से प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं, यानी कि पेड़ बनते हैं. सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन and woody stems. This is very important. कैसी stems होती हैं, hard, thick, brown. Okay. So some plants grow really very tall and they have thick brown and woody stems. The branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. Clear? ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं. कौन से प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं, जो टॉल हो जाते हैं, विच ग्रो टॉल एंड दे हैव थिक ब्राउन वुडी स्टेम्स. ओके. ये क्या है, ये ब्राउन ये स्टेम ही तो है. व्हाट इज़ इट, दिस इज़ द स्टेम. तो ये आपकी स्टेम है. तो स्टेम आपकी कितनी जब थिक हो जाती है, ब्राउन हो जाती है एंड इट इज़ एक्सीडिंग अ सर्टेन हाइट, सो वी कैन से दैट दोज प्लांट्स आर ट्रीज. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ ट्रीज. ओके. लेट्स मूव अहेड. नाउ श्रब्स कौन से प्लांट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जो बड़े नहीं हो पाते हैं अप टू अ सर्टेन लेवल. वो एक लेवल तक बड़े होंगे, उसके बाद दे विल स्टॉप ग्रोइंग. तो उनको हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं. Okay, some plants are not as tall as the trees. These plants often have many brown woody stems that start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick as the stem of the tree and they are called shrubs. Okay. For example, very important example, rose plant is a shrub. Shrub क्या होते हैं, जो plants एक लिमिट तक ग्रो होते हैं
they also have stems, they also have a hard stem, but it is not as hard, it is not as thick as that of a tree. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, shrubs कहते हैं. ठीक है. Another definition, some plants are typically small with soft and green stems. आपने को देखोगे कुछ plants जिनकी छोटी छोटी stems होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, we term them as herbs. and herbs का example भी बहुत important है, examples भी exam में आता है. so tomato plant is a herb. okay, next, some plants with weak stems need support to climb and grow and they are called climbers. अगर आपने मनी प्लांट देखा होगा आपके घर में, तो मनी प्लांट इज अ climber. Next we have creepers. Creepers are those plants which creep along the ground and are called creepers. Creepers कौन से plants होते हैं, जो ground के along grow होते हैं. Okay, climbers, they need support to climb and grow. Money plant is a climber. और creepers क्या होते हैं, जो ज़मीन में फैलते हैं. ठीक है, ग्राउंड ही लेवल पर दे विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, दे विल नॉट ग्रो, उनकी स्टेम्स ग्रो नहीं होती हैं, वो ग्राउंड लेवल पर ही दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लेट अस जस्ट एक लुक, हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं. ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी तक हमने पढ़ा ट्रीज़ क्या होते हैं. ट्रीज़ वो होते हैं जिनकी हार्ड थिक ब्राउन स्टेम होती है, ग्रो हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन हाइट, तो उन प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं. Then we studied shrubs. Shrubs also have a hard stem but not as hard as thick as a tree. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन plants को हम shrubs कहते हैं. Then we had herbs, जिनकी green soft stems होती हैं और small होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, herbs. Example, tomato plant. shrub का example ले लो. shrub, rose is a shrub. और trees में you can write neem tree. Okay, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा climber. क्लाइंबर वो होते हैं जिन्हें एक सहारा चाहिए, हु नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड. मनी प्लांट, वेरी कॉमन एग्जाम्पल. देन वी हैव क्रीपर्स. क्रीपर्स कौन से होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर ही दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल. ओके, सो देज आर योर क्रीपर्स. नेक्स्ट, You may observe thin lines on the leaves of a plant. These are veins. कोई भी अगर आप लीफ बनाते हो, लेट्स टेक अ लुक एट दिस लीफ, तो लीफ में पतली 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 लाइंस होती हैं, तो इन पतली पतली लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन्हें वेन्स कहते हैं. ठीक है. द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. वेनेशन क्या होता है, ये जो पैटर्न, ये जो बन रहा है आपकी पत्ती पे, ये जो एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न्स हर एक लीफ में अलग तरीके के हो सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो नीम प्लांट की जो पत्तियों में जो वेन्स हैं वो आपके पपाया प्लांट की पत्तियों से मैच करे, वो नहीं करेंगी. तो सब में अलग अलग वेन्स होते हैं और उस अलग अलग वेन्स के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वेनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके, और कौन से लीफ में कैसी वेनेशन शो हो रही है, ये तीन जो यहाँ पर गिवन है ना, ये भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है. ग्रास लीफ में कैसी वेनेशन होती है, पैरेलल, सब ऐसे एक के बाद एक के बाद एक लीव्स होती हैं. ओके, बनाना लीफ में वी हैव पैरेलल वेनेशन, सेम जैसी वेनेशन किस में हो रही है, ग्रास में, वही सेम वेनेशन वी हैव इन बनाना. फिर उसके बाद वी हैव हिबिस्कस. हिबिस्कस में कैसी वेनेशन है, रेटिकुलेट है, इस टाइप की है. Okay, now in some leaves you can observe a net like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. This is called reticulate venation. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन हैज़ टू बी लर्न. इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल. जो वेन्स हैं लीव्स की वो पैरेलल रन हो रही हैं, और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, बनाना प्लांट्स की लीफ और ग्रासेस की लीव्स. ओके, इस पेज में मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स, इनके डेफिनेशंस अलॉन्ग विद एग्जाम्पल. वन एग्जाम्पल इज ऑल्सो मोर देन इनफ. और उसके बाद वेन्स, वेनेशन क्या होता है,
दो टाइप की वेनेशन हमने अभी पढ़ी है, रेटिकुलेट पढ़ी है और पैरेलल वेनेशन पढ़ी है। रेटिकुलेट किस में होती है, हिबिस्कस में होती है, और पैरेलल वेनेशन किस में होती है, ग्रास लीफ में होती है और बनाना की लीफ में होती है। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर टू ऑल ऑफ यू।